بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں شبیر احمد قادری۔ میری طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم۔ امید ہے اللہ رب العزت اپنی رحمت کے صدقے آپ تمام پر اپنی رحمتوں کا نزول کر رہا ہے، آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جو ہم پروگرام میں بات چیت کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کہ پاکستان میں ٹک ٹاک بند ہونے کی کیا وجوہات ہیں۔ ہم نے اس پروگرام میں آج ایک مہمان کو مدعو کیا ہے جن کا میں مختصر تعارف کراتا جاؤں۔ ہمارے مہمان کا نام ہے محمد انوار الحق عوان صاحب۔ وہ ٹک ٹاک کے بند ہونے کی وجوہات پر روشنی ڈالیں گے۔ ہم اس پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، اپنے مہمان کا تعارف کرواتے ہیں اور اس میں جو بات چیت کرنی ہے اس کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں۔ جی انوار الحق عوان صاحب، آپ کو پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں۔ بہت شکریہ شبیر احمد قادری صاحب، بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا جو آپ اتنی محبتیں کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ٹک ٹاک ایک ایسا پلیٹ فارم تھا، پاکستان میں ٹک ٹاک ایک ایسا پلیٹ فارم تھا جس پر بہت کم ٹائم میں لوگ اس طرف بڑھے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ یہاں پر لوگ 10 سیکنڈ 15 سیکنڈ یعنی 1 منٹ کے اندر ویڈیو بنا کر اپلوڈ کرتے تھے اور وہ دنوں میں ان کے فالوورز بہت بڑھ جاتے تھے، جس سے انہیں ایک فیم ملتا تھا اور فیلڈ میں انہیں بہت فیم ملا۔ فیلڈ میں بہت سارے لوگ اس طرح کے ابھر کر آگے آئے۔ آپ سمجھ لیں کہ پاکستان کا جو ٹیلنٹ تھا وہ سامنے آنا شروع ہو گیا، لیکن جب ایک چیز کا فائدہ ہو تو اس کا نقصان بھی ہوتا ہے۔ اس کا نقصان بہت بڑا تھا اور ہوا اور ہو رہا تھا۔ وہ کیا تھا کہ ہماری جو نوجوان بچیاں ہیں، مائیں بہنیں ہیں، وہ اس پلیٹ فارم پر آ چکی تھیں اور یہ ایک فحاشی کا اڈا بن چکا تھا۔ جہاں پر اس پر اچھے لوگ تھے کام کرنے والے، وہاں پر برے لوگ بھی آ گئے اور یہ ایک فحاشی کا اڈا سمجھنے بن گیا تھا اور یہ گھر گھر میں تھا۔ صحیح، ہر بندے کے موبائل میں ٹک ٹاک، وہ ہماری ماں بہن ہو، گھریلو خواتین ہو یا ہم خود ہوں، ہمارے موبائل میں ٹک ٹاک ضروری ہوتی تھی۔ کوئی نماز ادا کرے نہ کرے، کام گھر کے کام کرے نہ کرے، لیکن اس نے ٹک ٹاک ضرور دیکھنی ہے۔ تو یہ سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا اور یقین مانیں کہ اس سے بہت زیادہ فحاشی پھیل رہی تھی اور فحاشی کے ساتھ ساتھ لڑائیاں جھگڑے۔ جی انوار الحق عوان صاحب، میں نے ٹک ٹاک پہ دیکھا ہے حافظ جو ہے مولوی عثمان صاحب ہیں جی، وہ ماشاءاللہ انہوں نے داڑھی مبارک جو ہے چہرے پہ سجا رکھی تھی اور ان کی بہت ساری ایسی ویڈیوز آئیں، اس پہ جو ہے میں نے کمنٹس بھی دیکھے کہ لوگ اس کو اس سے منع کر رہے تھے کہ آپ دین کا اور سنت نبوی کا کیوں مذاق اڑا رہے ہو۔ تو ایسی بہت ساری ویڈیو تھی جو ویڈیو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اس میں نقصان کا باعث۔ جی وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھیں وہ حافظ عثمان، اس بندے نے بہت شہرت حاصل کی ہے، چلے مان لیا وہ بندہ شہرت کے لیے اس نے بہت کچھ کیا، لیکن اگر وہ یہی نیک کام ٹک ٹاک پر کرتا تو اس کی جو شان ہے اس میں کوئی کمی نہیں تھی آنی۔ بالکل وہ صحیح ہے، تو بہت دور ہے، لیکن اس وقت جو ٹرینڈ چلا ہوا تھا نا ٹک ٹاک پر شبیر صاحب، وہ ناظرین کو میں بتا دوں کہ لڑائیاں جھگڑے اور برادری ازم پہ بہت زیادہ باتیں ہونا شروع ہو گئی تھی۔ جی علی میسی صاحب نے وہ سانگ بھی جو ہے ارائی برادری پر علی میسی، دیکھیں سب سے بڑی مثال ہمارے یہاں پر یہی ہے کہ علی میسی جسے کوئی جانتا نہیں تھا، وہ 6 ماہ میں ٹک ٹاک پر فیمس ہو گیا، اسے سٹار بن گیا بہت آسانی کے ساتھ۔ تو جیسے اس پر لڑکی آ رہے تھے، اسی رفتار کے ساتھ ہماری لڑکیوں کی وہ بہت زیادہ تعداد تھی نا، ہماری گھروں کی عزتیں جو تھی وہ اس پلیٹ فارم پر آ چکی تھی۔ تو یہ بڑا نقصان تھا کیونکہ اسلام میں عورت کو پردے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہاں پر تو فحاشی اور جس طرح آپ نے دیکھا کہ جو کام ہوئے، ہمارے جو ادارے ہیں
गवर्नमेंट के अदारे हैं, वहां पर बहुत बड़ी बड़ी मॉडल जो टिकटॉक स्टार हैं वो पहुंच चुकी। हरीम शाह जैसी, संदल खटक जैसी, वजारत दाखिला पर लोगों ने बातें की, वजीर आजम हाउस पर लोगों ने बातें की, बहुत सारा कुछ हुआ, वो हो भी रहा था। और लड़ाइयां झगड़े, मौलवी उस्मान की हम बात कर रहे थे, ये अगर नमाज का और कुरान के बारे में लोगों को बतलाते तो मैं यकीन से कहता हूँ कि ये इससे भी ज्यादा फेमस हो सकता था। बहुत सारे मैंने टिकटॉकर देखे हैं जो इस पे कुरान सुन्नत पे जो है उन्होंने बनाई है, मतलब वीडियोस बनाई हैं और वो वायरल हुई हैं, वो भी स्टार है ना। तो मौलवी उस्मान साहब जो थे वो डांस करना और दाढ़ी शरीफ रखते हुए मतलब अपने चेहरे को बिगाड़ना, मतलब ऐसे वैसे बहुत कुछ किया उसने स्टार बनने के लिए। तो इस पे मेरा यही कहना है कि अगर वो कुरान और सुन्नत की तबलीग करता, कुरान और सुन्नत की जो अशात के लिए वो अगर वीडियो बनाता तो डेफिनेटली तब भी वो फेमस हो सकता था। अनवारुल्लाह कवाल साहब ये बताएं कि आपको कोई उम्मीद नजर आती है कि टिकटॉक दोबारा जो है ये ऐप चल पड़ेगी? एक वक्त था कि जब पाकिस्तान में यूट्यूब को बैन कर दिया गया था। सही है। तो ये काफी मेरा ख्याल 2-3 साल तक यूट्यूब पाकिस्तान में नहीं चली, बंद रही। लेकिन उसके बाद यूट्यूब को चला दिया गया और फिर उसी तरह काम हो रहा है। लेकिन उसके नुकसान बहुत हुए थे यूट्यूब के, क्योंकि यूट्यूब पर हमें हर तरह की चीज मिलती है, वहां पर हमें टेक्नोलॉजी मिलती है, वहां हमने जो भी चीज दुनिया की सर्च करनी है, कोई भी इल्म हासिल करना है किसी चीज के बारे में हमें मिलता है। लेकिन मतलब लर्निंग जो है कुरान हर चीज दुनिया, मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो जो है कुरान जो है पढ़ाते हैं, इस पे यूट्यूब पे उन्होंने वीडियोस अपलोड की हैं, बराबर वो उन्होंने चैनल बना रखे हैं कि वो रोजाना एक रुकू या थोड़ा ज्यादा वो अपने जो स्टूडेंट है उनको यूट्यूब की वीडियो के जरिए तालीम देते हैं और बहुत अच्छी बात है। जब आपने हर बंदे की ये ख्वाहिश होती है कि वो सोशल मीडिया पर आके अर्निंग करे, पैसे कमाए, सही है, वो कैसे पता चलेगा उसे? वो भी यूट्यूब बताता है। ये नहीं मकसद यूट्यूब पर हर तरह का, मतलब यूट्यूब पे आप जो भी मतलब आप करना चाहें, जो करना चाहें कर सकते, वो हर चीज यूट्यूब पे मौजूद है। लेकिन इसके बरक्स यूट्यूब पाकिस्तान में बैन हो गया और कई साल तक बंद रहा। देखिए मेरी बात सुने, मैं तो इस पे यही कहता हूँ कि ये हुकूमत का जो फैसला है ना बहुत अच्छा है। अगर वो टिकटॉक की जो है इंतजामिया है, उसकी टीम है, उसके ऑनर है, पाकिस्तानी पॉलिसी के मुताबिक इसको लॉन्च करें, चलाएं, तो तब ही चलना चाहिए, वरना ये बैन ही रहना चाहिए। एक और बात सामने आई कि मैं न्यूज़ देख रहा था, वहां से जब मैंने खबर पढ़ी कि टिकटॉक बंद हो गई है, उसके बाद मैंने पता करने की कोशिश की कि यार ये क्यों टिकटॉक बंद हुई, आखिर वजह क्या है। तो शबीर साहब पता ये चला कि पीटीआई ने काफी देर से उन्हें मेलें की हैं, मतलब प्रॉपर चैनल उन्होंने जो है काम किया। जो टिकटॉक एप्लीकेशन है ये चाइना से है जी। तो टिकटॉक वालों को उन्होंने पीटीआई ने मेल की, एक दफा नहीं कई दफा, कि यार आप अपना सिस्टम जो है सेटअप है उसे बेहतर करें, इसे फाशी फैल रही है, इसे ये हमारी शिकायतें हमारे पास आ रही हैं, इन्हें दूर करें। लेकिन टिकटॉक की तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं किया उन्होंने पाकिस्तान को। और मैं समझता हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान का अदारा, जबकि पीटीआई पाकिस्तान का अदारा है, यानी पाकिस्तान को उन्होंने इग्नोर किया। और जब उन्होंने पाकिस्तान को इग्नोर किया, हम एग्री करते हैं टिकटॉक बंद रहे, अच्छा फैसला है ये पाकिस्तान। जब तक वो पाकिस्तानी कानून जो है अपने ऊपर लागू नहीं करते तब तक नहीं चलना चाहिए। अमेरिका में ये पहले से बंद है, इंडिया में भी बंद है, इसके अलावा पाकिस्तान में भी जो है बंद होने की जो है वो तैयारी है। तो मेरे व्यूअर्स, मैं यहाँ एक आपको बहुत जो है लेटेस्ट जो है खबर देने जा रहा हूँ कि ये टिकटॉक जो है अगर पाकिस्तानी हुकूमती फैसले जो हैं, कानून है जो तमाम जो है सोशल एप्स पर लागू हैं, तो अगर उसको नहीं मानती उनकी टीम, उनका जो है
ऑनर इसको नहीं मानता तो ये चलने वाली नहीं है। नहीं। अगर ये पाकिस्तानी जो है टीम है उसको उसके जो खतूत है उन्होंने लिखे हैं कानून के मुताबिक अगर ये चलाएंगे तो तब ही चलेगी। तो इनकी ये शिकायत थी ये प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पे भी बहुत सारी अपलोड हुई थी, बहुत सारे शहरियों ने मतलब इस पे शिकायत जो थी वो ऐड की थी, जिस पे एक्शन लेते हुए जो हमारे वजारत है, जिम्मेदार वजारत है, तो उन्होंने ये अच्छा फैसला किया है। अनवर अवान साहब, आप जो है जो टिकटॉकर के स्टार और व्यूअर्स और फॉलोअर हैं उनके लिए कोई अच्छा सा मैसेज दें। मैसेज देने से पहले बहुत अच्छी बात जो अक्सर जो स्टार्स थे उनकी तरफ से यही आया कि जी जो पाकिस्तानी फैसला है पाकिस्तानी हुकूमत का हम उनके साथ हैं, लेकिन उन्होंने भी यही कहा कि जनाब यहाँ पर जो लोग फहाशी फैलाते हैं, जो लोग लड़ाइयाँ झगड़े करते हैं, उनके तो बंद किए जाएं, ना कि पूरी टिकटॉक को ये सजा नहीं देनी चाहिए। और ये बहुत सारे ऐसे मुकदमा दर्ज हुए हैं जो लोग टिकटॉक पे असले की नुमाइश करते थे जी। ये सही फैसला था हुकूमत का और इंतजामिया का। और जब जो है टिकटॉक के ऑनर उसकी मुकम्मल जो इंतजामिया है, जो टीम है, वो पाकिस्तानी टीम से मिलकर इस सर्वर को चलाएंगे तो डेफिनेटली जो है ऐसा मवाद है वो कतई तौर पर अपलोड नहीं होगा। अगर अपलोड होगा तो उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई जो अमल में लानी चाहिए। असल में टिकटॉक में बहुत सारे ऐसे लोग ऐड हो चुके थे जो कि पहले से भी उनके किरदार अच्छे नहीं हैं, वो कुछ और ही दुनिया के लोग हैं, और वो टिकटॉक पर उन्होंने आके वो जो फहाशी थी जो कि उनके अड्डों तक महदूद थी, वो फहाशी उनके अड्डों से निकलकर हमारे घरों में आ गई, टिकटॉक वो हमारे घरों में आ गई, और वो हमारे लिए नुकसान था, हमारा माशरा खराब हो रहा था। इस पर मैं एक शेर कहूंगा, शबीर साहब, कमीने जब अरूज पाते हैं तो अपनी औकात भूल जाते हैं, और वो लोग अपनी औकात भूल गए थे, इस तरह के जो अनासर थे। तो अब कल से टिकटॉक बंद हुई है, क्या मैं समझता हूँ कि वो कहाँ गए, अब उनके पास क्या सोर्सेस हैं, कुछ भी नहीं। तो अगर वो लोग सही मुआद यहाँ पर देते तो ये दिन देखना ही ना पड़ता हमें। तो मैंने कल वीडियो जो है अपलोड की थी कि टिकटॉक जो है पाकिस्तान में बंद हो गया, तो अगर ये हुकूमत के साथ मिलकर चलाएं तो मुमकिन है ये चल जाए। तो कुछ दोस्तों को जो मेरी बात है हजम नहीं हुई, तो उनके लिए मेरा शेर है कि कुछ तलख बातें हैं मेरी, कुछ तलख बातें हैं मेरी जमाने के मजाज से। मेरा नाम है शबीर, मेरा शोभा है सहाफत। मैं ऐसी सच्ची जो बातें हैं ना जो कड़वी लगती हैं आपको, वो कहता और लिखता ही रहूंगा। क्यों? मैंने एक असलाह के लिए, आपकी असलाह के लिए एक वीडियो बनाई कि अगर टिकटॉक पे आप फाशी ना फैलाते, अगर ऐसे मवाद को अपलोड नहीं करते जो पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तानी माशरे के खिलाफ है, तो ये टिकटॉक पाकिस्तान में कभी बंद ना होती। बिल्कुल आपने सही कहा। देखें जो टिकटॉक, एक और मैं बात यहाँ पे करूंगा, जो टिकटॉक स्टार्स हैं टिकटॉक पर बड़ा रूज पाते हैं, और वही लोग आखिर पर यूट्यूब पर जब आते हैं यूट्यूब की तरफ, तो शबीर साहब आपने देखा कि वो चंद दिन यूट्यूब पे रहते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। उसकी वजह यूट्यूब की पॉलिसी को फिर जो है फॉलो भी करते हैं जी, टिकटॉक पे क्यों नहीं करते? टिकटॉक पर अगर उनके लाखों में फॉलोअर्स हैं तो यूट्यूब पर उन्हें हजारों में करने में मेहनत करनी पड़ती है। यूट्यूब सही है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर बंदा मेहनत करके आगे आता है, और यहाँ पर फहाशी नहीं है। हमने यूट्यूब को देखा, यहाँ पर फहाशी। साहब, प्रोग्राम के इख्तिताम पर हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें प्रोग्राम में टाइम दिया। आज की वीडियो को यहाँ ही इख्तिताम पज़ीर करते हैं। हमें अपनी दुआओं में याद रखें। जो मेरे YouTube चैनल पर नए आए हैं, मेरे YouTube की ये अगर वीडियो अच्छी मेरी लगी हो तो इसको लाइक करें, इसको वॉच करें, इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स में हमें राय भी दें। तो
اپنے میزبان شبیر احمد قادری اور اپنے مہمان انوار الحق عوان صاحب کو اجازت دیں، اسی کے ساتھ ایک نعرے کا ہمارے ساتھ جواب دیں، پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔